السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ سویرا بھٹی اور میں ہوں طاہر اکرم۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں 7 سال بعد غربت کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 29.9% ہو گئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی احسن اقبال نے کہا کہ 2018 کے بعد غربت کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال چاروں صوبوں میں غربت میں اضافہ ہوا۔ ہم نے پہلی بار کثیر الجہتی غربت کے اعداد و شمار پیش کیے۔ شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی ہے۔ پنجاب میں غربت 16.5% سے بڑھ کر 23.3% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا سندھ میں غربت 24.5% سے بڑھ کر 32.6% ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں غربت 28.7% سے بڑھ کر 35.3% تک جا پہنچی ہے۔ بلوچستان میں بھی غربت 41.8% سے بڑھ کر 47% ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پالیسی کے عدم تسلسل، کورونا وبا، IMF پروگراموں کو غربت میں اضافے کی وجہ قرار دیا۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر خطاب میں کہا کہ اڑان پاکستان کے تحت ڈسپلن کے ساتھ ایجنڈا فالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر غربت ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں غربت کی سطح میں 7% اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کو نیشنل سطح پہ اربن اور رورل بریک ڈاؤن دیکھیں تو جو اربن پاورٹی تھی جو بڑھ کر اب 17.4% ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو رورل پاورٹی ہے وہ 28.2% تھی جو بڑھ کر 36.2% ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ صوبوں کی سطح کے اوپر دیکھیں تو پنجاب میں جو پاورٹی کی شرح 16.5% تھی وہ بڑھ کر 23.3% ہو گئی ہے۔ اگر آپ صوبہ سندھ میں دیکھیں تو جو 24.5% تھی 2018-19 میں وہ بڑھ کر 32.6% ہو چکی ہے۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں جو 28.7% تھی وہ بڑھ کر 35.3% ہو گئی ہے، اور بلوچستان میں جو 41.8% تھی وہ بڑھ کر 47% ہو گئی ہے۔ 4 سال کی معاشی بدحالی جو 18 سے 22 تک کریش کی ہماری GDP گروتھ ریٹ، اس کے بعد غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں جن کے نتیجے میں کنزمپشن اور امپورٹ لیڈ گروتھ کو اختیار کیا گیا، جس نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کیے، اس کے نتیجے وزیراعظم شہباز شریف سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO نے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ آپ کو بتائیں کہ DFC کے سرمایہ کاری کے سربراہ کونر اور سینئر قیادت بھی ملاقات میں شریک ہوئی۔ ساتھ ہی وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری کے فروغ، دونوں ممالک کے نجی اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبوں کو متحرک کرنے میں DFC کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ DFC کو توانائی، کانکنی اور معدنیات، زراعت اور IT کے شعبوں میں منصوبوں کے لیے اپنی فائنینسنگ اور اپریل میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی معدنیات کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی اور ملک نے GDP کا 1.3% بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کیا، جو پروگرام کے اہداف کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF نے وفد کے اس دورے کے دوران توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے جبکہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے پر بات چیت کرے گا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے اعتراف کیا ہے کہ IMF کے تحت پاکستان کی پالیسی سے معیشت کو استحکام ملا۔ جولی کوزیک نے مزید بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح قابو میں رہی، جبکہ مالی سال 2025 میں ملک نے 14 سال بعد پہلی مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ریکارڈ کیا۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی واشنگٹن میں منعقدہ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں
شرکت کے لیے آئے عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ مروہ شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف، قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقیوف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوت سوبیاناتو سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی، جبکہ ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ اور غیر رسمی گرمجوشی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی دعوت پر بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت غزہ میں امن کے قیام، تعمیر نو عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور سفارتی پالیسی کی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کی عکاسی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کو سفارتی تنہائی کا سامنا تھا، لیکن آج پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سے جاری اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں پاکستان کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے کردار کو بھی سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے، وہ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، ایک عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی جو آج تعریف کی ہے، تو یہ پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کا سٹیچر بڑا ہے، اور پاکستان گلوبل سٹیج پہ ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور پاکستان ایکسٹریملی ریلیونٹ ہے گلوبلی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے، اور یہ ٹیم ورک ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا، جس نے انیبل کیا ہے پاکستان کو کہ الحمدللہ آج پاکستان کی ایک گلوبل سٹیج کے اوپر جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے جس طریقے سے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، اور بڑے مؤثر طریقے سے وہ ہر فورم پہ فلسطین کی بات کرتے رہے ہیں، اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ، اس کے علاوہ ایس سی او کے فورم پہ، جہاں جہاں بھی جاتے رہے ہیں، جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورمز پہ جاتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کا مقدمہ بڑی زوردار آواز سے لڑا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو 3 باتیں انہوں نے کی، یہ فلسطینی زمین کے اوپر فلسطینیوں کا حق ہے، اور یہ کہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور یہ کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وہ باتیں تھیں جو فلسطینیوں کی بھی دل کی آواز تھی، اور ہر مسلمان کے لیے بھی یہ ایک باعث اعزاز ہے کہ آج وزیر اعظم نے جس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ وہاں پہ لڑا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، اور امریکی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آج انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور ساتھ ہی انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور ساتھ ہی بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو عام سائلین کی طرح قانون پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے، اور ساتھ ہی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ عائشہ ملک نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ ریاست شہریوں سے تو قانون منواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ دفتروں کے اندر رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ حکومت کے مطابق آفیسر کے تبادلے کی وجہ سے فائلیں دفتر رہیں، اپیل دائر کرنے میں دیر ہوئی، سرکاری افسران کی کمی یا کمیٹیوں کے اجلاس نہ ہونا حکومت کا اپنا قصور ہے۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ قانون پر عمل درآمد افسران کی سہولت کے تابع نہیں بلکہ نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج اور تاخیر معاف کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت نے مقررہ 60 دن کی مدت گزارنے کے بعد 20 دن کی تاخیر سے اپیل دائر کرنی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 12 فروری کو سماعت کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر ان کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने रिहाई के लिए जमानत की दरखास्तों पर समाअत की तो प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने रिहाई के लिए जमानत की दरखास्तों पर समाअत की तो प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने जलाओ गिराव के 2 मुकदमात में जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 5 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दिए गए अहदाफ और साथ ही इस CM रिफॉर्म मैट्रिक्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सीनियर अफसरान ने मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने हदायत की कि थानों, फ्रंट डेस्क और खिदमत मराकज में शहरियों के इस्ते नफ्स का हर सूरत ख्याल रखा जाए। RPOs और DPOs को रोजाना शहरियों से फीडबैक लिया जाए, जबकि FIR में तखीर, नाकस तफ्तीश, बदसलूकी, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज और पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थानों के बाहर पिंक बटन की तस्लीम एहलकारों को बॉडीज कैमरे फराहम किए, ज़ेहनी व जिस्मानी ग्रूमिंग ट्रेनिंग जारी रखने, SDPOs की सुपरवाइजरी कारकर्दगी बेहतर बनाने और क्राइम सीन पर लाजमी रिस्पॉन्स यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। और इजलास में सीनियर अफसरान शरीक हुए, जबकि RPO सरगोदा डॉक्टर शहजाद आसिफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पाकिस्तान में तेल और गैस का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में OGDCL ने तेल और गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया है। तर्जमान OGDCL के मुताबिक कुएं से योमिया 10 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस और योमिया 225 बैरल खाम तेल हासिल होगा। दरियाफ्त होने वाला ज़ख़ीरा तलब और रस्द में फ़र्क कम करने में मुआविन होगा। बरागज़ाई X1 कुएं की खुदाई 30 दिसंबर 2025 को शुरू की गई थी। मज़कूरा कुआं की खुदाई 5170 मीटर तक की गई है। नई दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। FIA लाहौर का इंसानी स्मगलर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। और आपको ये भी बताएं कि गिरफ्तार मुलजिमान में बाबर अली और मलिक शहरियार शामिल हैं। मुलजमान में बाबर अली और मलिक शहरियार शामिल हैं। मुलजमान को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाबर अली ने शहरियों को UAE वर्क वीजा का झांसा देकर 8,30,000 रुपए हथियाए। मुलजिम FIA को साल 2024 से मतलूब था, जबकि मलिक शहरियार अली ने शहरी को UK मुलाजमत का वीजा का झांसा देकर 57 लाख रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रुपोश हो गए थे। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि हुकूमत समाजी इंसाफ पर पुख्ता यकीन रखती है। समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दीन इस्लाम समाजी इंसाफ, मसावात और पुरअमन बकाए बाहमी की तलकीन करता है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के साथ हर लिहाज से इंसाफ करने का लफानी पैगाम दिया है। समाजी इंसाफ से आरी मुआशरे तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर मजहब मुआशरे की बुनियाद ही समाजी इंसाफ और मसावात है। समाजी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अमीर गरीब की बढ़ती खलीज से मुआशरती और समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मिनारिटी कार्ड और हिम्मत कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम समाजी इंसाफ के हदफ की जानिब वाज़े पेशरफ्त है। FIA लाहौर का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में बाबर अली और मलिक शहरियार शामिल हैं। मुलजमान को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाबर अली ने शहरियों को UAE वर्क वीजा का झांसा देकर 8,30,000 रुपए हथियाए। मुलजिम FIA को साल 2024 से मतलूब था, जबकि मलिक शहरियार अली ने शहरी को UK मुलाजमत का वीजा का झांसा देकर 57 लाख रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रुपोश हो गए थे। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पेशावर में ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी है। कोर कमांडर पेशावर की ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा से खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात और दरपेश चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू की। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों,
पेशा वराना महारत खुसूसन मौरका हक में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत को सराहा। तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान की मस्बत बयानिए के मुहाफ़िज़ बनकर कौमी मफादात के दिफा में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आगे आगे बढ़े और इस तरह जो है ना एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले जो मुल्क को कौम के लिए फ़ायदा मंद हो और इस तरह एक्टिविटी से All we discussed about the boundaries of KPK, the beauty of KPK, but later on we discussed कि जो KPK के जो growing threats हैं वो क्या हैं। लोगों ने अपने मसाइल जो वो चीज़ें जो आर्मी टैकल कर सकती है उसके बारे में बताया। आगे बढ़े और इस तरह जो है ना एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले जो मुल्क को कौम के लिए फ़ायदा मंद हो और इस तरह एक्टिविटी से पाक फौज और अवाम के बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशंस है वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, इसके हवाले से हमें एक बैकग्राउंड मिला, हमें पूरा उसका एक आइडिया हुआ कि क्यों ये हो रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे के मौके पर लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जुम्मे के इज्तिमात, मार्केट्स और अवामी मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। CCP लाहौर के मुताबिक जुम्मत और मुबारक पर शहर भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जुम्मा इज्तिमात, मार्केट्स और अवामी मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात है। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि नमाज जुम्मा के इख्तिताम तक सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों के जरिए खसूसी निगरानी की जा रही है, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की मौसर पेट्रोलिंग की हदायत दी गई है और शहर की दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी रहेंगे ताकि किसी भी शरपसंद अंसर को सर उठाने का मौका न मिल सके। पहले आगाही फिर निफाज के तहत पंजाब पुलिस ने सूबे भर में ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने का फैसला कर लिया। साथ ही DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वक्कास नज़ीर ने 4 नुकात पर मुश्तमिल मरासला जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरासले के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर में मोटरसाइकिल और सुस्त रफ्तार गाड़ियां इंतहाई बाइक लेन में चलेंगी और लाइन के अंदर पार्किंग जुर्म होगी, जबकि कमर्शियल गाड़ियां, रिक्शे और चिंची सिर्फ मुकर्रर स्टॉप पर ही खड़े होंगे। मुकर्रर हद से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और स्टॉप पर मजाज तादाद भी अवेजा की जाएगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 से 4 रोज आगाही मुहिम चलाई जाएगी, जिसके बाद खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि मसाली ट्रैफिक निजाम के क़याम के लिए पुलिस का साथ दें और कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। हुकूमत पंजाब की तरफ से लाहौर में लगाए गए रमज़ानुल मुबारक सहूलत बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। शहरी एक ही छत तले सब्जियाँ, फल, गोश्त और दीगर अशियाए ख़ुरनोश खरीद रहे हैं। सार्फिन चीज़ों के मयार और कीमतों से मुतमईन नज़र आ रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़1 एजाज शेख इस वक्त जोहर टाउन रमज़ानुल मुबारक के सहूलत बाजार में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी एजाज शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहूलत बाज़ार में, जो रमज़ानुल मुबारक में स्पेशल लगाया गया। सिर्फ उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ जो महंगे दामों मोहल्लों में या दीगर बड़े बाज़ारों में जाकर महंगी अशाए खुर्दोनोश ख़रीदते हैं, उनको सहूलत मिल सके और सस्ते दामों अशाए खुर्दोनोश मिल सके। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ये बड़ा कदम उठाया है। मेरे साथ एक सारे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बाज़ार का फ़ायदा क्या है, क्या हकीकी फ़ायदा भी है कि सिर्फ बातों में फ़ायदा है। जी, ये जो बाज़ार लगाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने जो ना कदम लिया हुआ है। इसका बहुत फ़ायदा है बंदों को। और ये आगे तो था 1 दिन के लिए होता था, लेकिन ये पूरा वीक अब चलता है। पूरा एक सेटअप बन गया है और लोग इससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। और चीज़ें जो है ना वो भी फ्रेश भी मिलती हैं और रेट के लिहाज से भी जो है ना मुनासिब है। अच्छा, इसमें कौन सी कमियां हैं जो दूर होने वाली हैं? ऐसे इक़दाम हैं जो नहीं हैं लेकिन ज़रूरी हैं? ज़ाहिर आप पूरे बाज़ार को देख रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है, तो क्या समझ रहे हैं किसकी ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जो बंदा कहे कि, लेकिन फ़िलहाल हर चीज़ बड़ी परफेक्ट आ रही है। हर चीज़ का जो टाइम है, जो मेरा मतलब है, दुकानें वगैरह हैं, फ्रूट है, सब्ज़ी है, सबके अलग-अलग डिपार्टमेंट है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, CM साहब ने ये कदम लिया जो ये बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने सुना, सारिफ का कहना है कि बिल्कुल 110% परफेक्ट है, इसमें किसी
कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। वो तमाम अशियाए खुर्दनोश, तमाम वो अशिया यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी एक आम आदमी को ज़रूरत होती है। जी तफसीलात बता रहे थे एजाज शेख, आपका शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी महंगाई उरूज पर पहुंच गई है और साथ ही खजूरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और होशरुबा इजाफे ने रोज़ेदारों को परेशानी में भी मुब्तला कर दिया है। ज़िले भर में प्राइस कंट्रोल कमेटी टीमें गैर फ़ाल हो गई हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी जाहिद खरल, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए तो माह रमज़ान में भी महंगाई पे कंट्रोल ना सका। खजूरों का रेट कहीं पर 550, कहीं पर 600 रुपये। दुकानदार जो है मनमाने रेट मुकर कर दे, जिस पर रोज़ेदार सख्त परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी आप बताइए, तो खजूर खरीद करने आए हो, कितना दाम बढ़ गया है? रमज़ान से कबल पहले कितने थे, अभी कितने हो गए? सर पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अर्ज़ करूँगा, मेन आइटम है जो है इफ्तारी का, वो है खजूर। वो खजूर इस वक्त रेट आसमान को छू रहे हैं, बल्कि पहले था 300 रुपये रेट, 350 रुपये, अभी 500 से ऊपर रेट चले गए हैं। खुदारा हम आला इक़दाम को अपील करते हैं कि ये जो भी है रेट इसको कंट्रोल में किया जाए। कोई नहीं, मुख्तियार कह रहे नहीं, कोई डीसी साहब का कोई बंदा है ना, कोई भी बंदा शहर में किसी की भी ज़रूरत इधर नहीं है। मेहरबानी। जैसे कि आपने शहरी की बात सुन, उनका यही कहना है कि दुकानदारों ने अपने ही रेट मुकर कर दिए हैं। प्राइस कंट्रोल और मुख्तियारकार ज़िला इंतजामिया की टीम मुकम्मल महंगाई पे कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन नोटिस लेकर महंगाई के खिलाफ। शुक्रिया जाहिद खरल तफसीलात बताने के लिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही इफ्तार दस्तरखान की रिवायती जीनत खजूर की फ़रोख्त में इजाफा हुआ, लेकिन इसकी कीमतें भी उरूज पर पहुंच गई हैं। टोबा टैक्सिंग में बाज़ारों में मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। ख़रीदारों का कहना है कि कीमतों में मामूली इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर तलब में कमी नहीं आई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहर के बाजारों में खजूर की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इफ्तार के वक्त रोजा खोलने के लिए खजूर को खुसूसी अहमियत हासिल है और यही वजह है कि हर दस्तरखान पर खजूर लाजमी जुज बन चुकी है। दुकानदारों के मुताबिक अजवा, अरानी, मिस्री और सऊदी खजूर की तलब में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि सादा और दरमियानी कीमत की खजूर भी बड़ी तादाद में फरोख्त हो रही है। रमजान मुबारक में ये खजूर जो है इसकी सेल ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये सुन्नत है इसके साथ इफ्तारी करना। इसमें कुदरती तौर पे जो इसमें ताकत ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टॉल लगाया हुआ है। माशाल्लाह ठीक है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी करके लेके जा रहे हैं। इफ्तारी करने के लिए सामान लेने आया हूँ। इधर मैं खजूर के स्टॉल पर आया हूँ। खजूर बहुत अच्छी है और रमजान मुबारक की वजह से ज्यादा सेल हो रही है, क्योंकि ये खजूर के साथ रोजा इफ्तार करना सुन्नत भी है और ताकत भी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद वो इफ्तार में खजूर को शामिल करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि सेहत बख्श भी है। माहरीन सेहत के मुताबिक खजूर तवानाई से भरपूर होती है और रोजादारों को फौरी ताकत फराहम करती है, इसीलिए इफ्तार का आगाज खजूर से करना मुफीद समझा जाता है। रमजान के बाबरकत महीने में खजूर की खुशबू और मिठास इफ्तार की रूहानी माहौल को मजीद खुशगवार बना देती है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। साथ ही इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। जामे प्लान ऑफ एक्शन RNAP सेक्रेटरीट के जरिए वफाकी हुकूमत को इरसाल करने का फैसला भी सामने आया। इजलास में RNAP 2021 के इंफॉर्मेशन डोमेन के तहत सूबाई सतह पर होने वाली पेशरफ्त और जामे एक्शन प्लान का जायजा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आउटडोर मीडिया के जरिए मरबूत मुहिमात चलाने, फिल्मों और दस्तावेजी प्रोग्राम्स के जरिए कौमी बयानिया को मुस्तहकम करने और साथ ही मार्का हक के बाद दुश्मन के बयानिया का मुदल्लल तोड़ करने की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए ये भी कहा कि कौमी बयानिया को मजबूत और मरबूत बनाना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत RNAP 2021 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी संजीदगी से अदा कर रही है और एक मुत्तहिद कौमी बयानिया ही दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे सकता है, नई नस्ल को मस्बत और तामीरी सिमत फराहम कर सकता है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद नबवी में नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा हुआ।
मुतामिरीन की बड़ी तादाद मक्का अल मुकरमा में उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गई और मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी मजहर नवाज भट्टी मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। जी मजहर, बताइएगा क्या रूह परवर मनाजिर नजर आ रहे हैं? तो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन के शहर मदीना मुनव्वरा में हूँ और इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में हूँ, जहाँ लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन मक्का अल मुकरमा में उम्रे की अदायगी के बाद बाकायदा तौर पर मस्जिद नबवी में आकर तो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन के रोज़े पर आकर जहाँ दरूद व सलाम के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, वहाँ यहाँ के मुकीम भी बाकायदा तौर पर खलीजी ममालिक से आए हुए जो मुकीम हैं वो भी जोक दर जोक आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन के रोज़े पर आकर दरूद व सलाम के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं और रियाज़ुल जन्ना में आकर नवाफिल की बाकायदा तौर पर अदायगी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन जो है इक़दामात किए गए हैं और तमाम उम्रा ज़ायरीन के लिए बाकायदा तौर पर सहरी और अफ्तारी के जो हैं वो ज़बरदस्त जो है वो बाकायदा तौर पर इंतज़ामात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मजहर भट्टी तफसीलात के लिए।